गुड इव्हनिंग मित्रांनो. नॅशनल स्टुडंट्स युनियन आणि लीगल लाईफ 2020च्या आजच्या 11व्या पुष्पात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज आपल्याला विशेष पाहुणे म्हणून लाभले आहेत ॲडव्होकेट पांचाळ सर, जे मुंबई हायकोर्ट, त्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल जी सेंट्रल आहे आणि जी स्टेटची आहे, दोन्ही ठिकाणी ते काम करत असतात. वेगवेगळ्या विषयावर सातत्यानं ते आपलं काम करतात आणि कायद्यामध्ये ते पीएचडी सुद्धा करत आहेत. तर आजच्या दिवसांनी ते आम्हाला लाभले. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही लीगल लाईफ 2020 आणि नॅशनल स्टुडंट्स युनियनच्या वतीने करत आहोत. आणि वेळेचा विलंब न करता सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आज जो मुख्य विषय दिलेला आहे तो विषय आहे की संविधानाने दिलेली फंडामेंटल राईट्स, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य, आपण कर्तव्य नाही फक्त मूलभूत अधिकार आणि हक्क या दोन विषयावर बोलणार आहोत. तर नक्कीच सर या विषयाला न्याय देतील असं मी गृहीत धरून मी आजचं जो काही व्याख्यानमाला आहे ती सुरू करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. तर सर्व प्रेक्षकाच्या वतीनं नॅशनल स्टुडंट्स युनियन आणि लीगल लाईफ 2020च्या वतीनं पुन्हा एकदा सरांचं मनपूर्वक स्वागत आणि सरांनी सुरू करावं, थोडक्यात परिचय देऊन सुरू करावं अशी मी त्यांना विनंती करेन. Thank you, Dadarao. First of all, let me congratulate your team, NSU, Legal Life, and the entire team, which is arranging such a beautiful and such a valuable program to create awareness in our society, so that people will understand what are the rights which are guaranteed to them by our constitution, and how these rights are very, very valuable and inalienable in their daily life. And these are the very rights which make their life worth living, and it gives them a dignified human life. So once again, let me congratulate the entire team. And I am Advocate Rajeshwar Panchal. I have been practicing law at Bombay High Court from 2005. I have done my LLB from Nanded, and thereafter I did my LLM in Bombay University. And since 2005, I have been actively practicing in the High Court, dealing with the constitutional issues, service issues, and I have dealt even many public interest litigations, that is for the public benefit, etc. And today, I feel very obliged and very grateful that you have invited me, and I have of course did not have even second thought to come on your platform, so that I can also contribute into your constitutional awareness program. So without wasting further time in formality, let me now start with the today's topic. Today's topic is fundamental rights. Dear friends, fundamental rights are, the core of the Constitution of India. They are the rights which make our life worth living. They are the human rights. Actually, some of the human rights have not been given the status of fundamental rights, and they have been placed into fourth part of Constitution. And our courts, by way of judicial activism, have tried to bring them into chapter of fundamental rights by interpreting articles of Constitution of India, such as we can find that today, Article 21 of Constitution of India has included so many rights which are not expressly given into Constitution, and this judicial interpretation has actually widened the spirit of various articles guaranteeing to us fundamental rights. So dear friends, तो हम ये जान लेते हैं आज कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है और उनका महत्व हमारे लाइफ में क्या है और किस तरह से हमें ये अधिकार मिले हैं और उनका जानकारी रखना कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लाइफ में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कैसे हमें मिले हैं और इसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो आप सभी ने मैग्ना कार्टा, ये 1215 में एक डॉक्यूमेंट आया था मैग्ना कार्टा। उस टाइम को इंग्लैंड के राजा किंग जॉन जिनका नाम था, उनसे
बगावत करके वहां के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए रिटर्न फॉर्म में एक अश्योरेंस लिया था, उसे मैग्ना कार्टा करके कहा जाता है। ये घटना घटी थी 1215 में। तो ऐसा कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो आज हम एंजॉय करते हैं, उसका उसका जो बिगिनिंग था, उसका जो प्रारंभ था, वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसके बाद में फिर पूरी दुनिया में एक मुहिम सी छिड़ गई, जिसके तहत लोगों ने अपने अधिकारों के लिए झगड़ना चालू किया, संघर्ष करना चालू किया। फिर वही सीरीज में आगे चल करके बिल ऑफ राइट्स आया, फिर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया। ये ऐसा लगातार सिलसिला चलता गया और 1948 में इंटरनेशनल लेवल पे यूडीएचआर आया, जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। लगभग उसी टाइम को हमारे देश की घटना बनने का काम चल रहा था। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमें जब आज़ादी मिली, उसके बाद में हमारा घटना बनाने का काम शुरू हुआ। लगभग उसी साल में यूडीएचआर आया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल, सिविल, सोशल, कल्चरल इस तरह के रिकॉग्नाइज किए गए। और यूडीएचआर ऐसा जागतिक लेवल पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हमारे जो बेसिक्स अधिकार है, मतलब जिसे हम मौलिक कहेंगे, मूलभूत कहेंगे, ऐसे अधिकारों का एक रिटर्न फॉर्म में रिकॉग्निशन दिया गया। और दुनिया के लगभग 160 कंट्रीज ने उसे रेटिफाई किया, यानी कि उसे हमारे खुद के राज्यों में हम लागू करेंगे, इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पर एक अभिवचन दिया सभी राज्यों में। तो सिमिलरली 1966 में इसी बात को आगे लेकर के ICCR कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिमिलरली दूसरा डॉक्यूमेंट था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस राइट्स। तो ये सब है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। लागू होने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई सारे अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन हमें आज सिर्फ ये जानना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। क्योंकि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किताब लीजिए, कोई कमेंट्री लीजिए, और आपको लगभग उस किताब का 70% या 80% का जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर मिलेगा आपको। यानी कि फंडामेंटल राइट्स ही इतने इंपॉर्टेंट है कि लिखने वाला जो ऑथर होता है, वो कमेंट्री लिखता है, तो उसका लगभग 70 to 80% जो वॉल्यूम है बुक का, वो इसी के ऊपर होता है। यानी कि इस बात से आपको एक आइडिया आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर पूरे देश का, पूरे समाज का कितना फ्रेटर्निटी, ये सब इक्वालिटी इन स्टेटस, इन ह्यूमन डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब बातों को इस्टेब्लिश करने के लिए इक्वालिटी, जस्टिस एक्सेट्रा, ये बहुत जरूरी होता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसे हम थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 का, इन आर्टिकलों का बनकर उसे थर्ड पार्ट कहा जाता है। उसमें फंडामेंटल राइट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मौलिक या मूलभूत अधिकार, तो उसमें एक्चुअल में स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से लेके, लेकिन उसके पहले जो 2 आर्टिकल है बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानकारी हम अच्छी तरह से जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। क्यों ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में ही जो है इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। इसलिए स्टेट का जानना जरूरी क्या है, आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो स्टेट यानी कि कौन है? स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके साथ में स्टेट लेजिस्लेचर है, जहां पे स्टेट लेवल पे लॉज बनते हैं। अभी कई राज्यों में आपको असेंबली मिलेंगी, असेंबली के साथ में काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेंगी। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस राज्यों में, उन दोनों को मिलकर लेजिस्लेचर बनता है। कई कई राज्यों में काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे लॉ बनता है। तो ऐसे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड वहां का लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट और उसके साथ में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको छोड़ करके ऐसे दूसरे अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर वो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ऐसे सभी, अभी इसे हम आसान शब्दों में कहेंगे तो ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग होते हैं, महामंडल जिन्हें हम कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट बैंक्स, ओके, तो ये सारे के सारे जो अंडरटेकिंग से ये भी इस अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन में आते हैं।
education institutions which are run by the government, or so many other educational institutions which are receiving aid from the government, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एड लेने की वजह से वो उस कैटेगरी में आते हैं, ऐसा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का स्कोप बढ़ता जाता है। तो ये जो सारे अथॉरिटीज है, अब गवर्नमेंट में कौन आता है, तो गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लॉज बनते हैं हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेटअप किया जाता है, जो पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। अब आप कोई भी डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है हमारे देश के जो कानून है उन्हें अमल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो ये सारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसके साथ में जुडिशरी जो है हमारी, जो स्टेट लेवल की जुडिशरी या सेंट्रल लेवल की जुडिशरी बोलिए या फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोलिए, जुडिशरी भी इसमें इंक्लूड होती है स्टेट के डेफिनेशन में, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, यानी कि किसी स्टाफ का सिलेक्शन करना हो या किसी के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना हो, तो उस कंटेक्स्ट में जो है जुडिशरी भी इस स्टेट के डेफिनेशन में आती है। तो उसके बाद में आर्टिकल 13, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यही वो आर्टिकल है जो तुम्हारे राइट्स को, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक जो आगे बातें आती है, इनको असल में फंडामेंटल राइट का दर्जा देने का काम करते हैं। अब नॉर्मली हम देखेंगे राइट्स क्या होता है, तो राइट्स एक इंटरेस्ट होता है जिसे लॉ प्रोटेक्ट करता है, या जिसे लॉ के माध्यम से आप उसको एनफोर्स कर सकते हो। सो राइट इज नथिंग बट एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन हम देखेंगे। तो राइट्स में कई सारे राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स जिसे किसी कानून के माध्यम से हमें दिए गए हो, कस्टमरी राइट्स होते हैं जो लंबी दौर से कस्टम चलती आ रही हो, और वो कस्टम चलते चलते उसने राइट का एक फॉर्म अचीव कर लिया हो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर दोनों पार्टी मिलके एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको एग्रीमेंट ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बनता है। तो ह्यूमन राइट, जैसा मैंने कहा था, यूडीएचआर है, ह्यूमन राइट्स होता है। तो स्टैट्यूट यानी कि जो लॉज होते हैं, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया, जो जिसे हम एक्ट, अधिनियम कहते हैं, या फिर अलग अलग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि रेगुलेशंस, रूल्स, इनके माध्यम से जो राइट मिलता है, उसमें से इन सारे जो स्टैट्यूटरी फॉर्म में जो राइट मिलते हैं, इन्हें हम लीगल राइट कह सकते हैं एकदम आसान भाषा में। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, इन्हें हम फंडामेंटल राइट कह सकते हैं। और फंडामेंटल राइट का होना और कोई राइट का फंडामेंटल राइट होना, इसका मतलब क्या है वास्तव में, तो ये मैं बताने के लिए आपको आर्टिकल 13 का एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि ये पार्ट 3 में, यानी कि आर्टिकल 14 से 32 तक आगे आने वाले जो भी अधिकारों की बात होती है, उन अधिकारों के खिलाफ में अगर दुनिया का यानी कि हमारे देश का कोई भी दूसरा कानून इनके खिलाफ में, यानी कि इनके इनकंसिस्टेंट और डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगर रहेगा, तो उसे नल एंड वाइड माना जाएगा। यानी कि इन फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक है, इनके खिलाफ में दुनिया का कोई भी कानून नहीं टिक सकता। इन द सेंस, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैनॉट मेक अ लॉ, कैनॉट मेक एन एक्ट विच इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट which is guaranteed either by 14, 15, 16 or so on and so forth. Okay. Similarly, state government also cannot make a law which is violative of your fundamental right guaranteed by any article of Constitution of India. That is in the third part. या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन नहीं बन सकता है जो तुम्हारे इस मूलभूत अधिकार को छीन कर लेने का प्रयास करता हो। ओके, ऐसा कुछ अगर कानून बनता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि वो नल रहेगा, वाइड रहेगा। ओके, तो ये लॉ का इसमें मीनिंग क्या है? आर्टिकल 13 में लॉ का जिक्र आता है, तो हमें ये भी जानना है कि लॉ का मतलब क्या होता है। तो लॉ में, जैसा मैंने कहा, कस्टम भी एक लॉ का एक सोर्स होता है। तो कस्टम से चलता आ रहा कोई ऐसा अगर बात हो जो लॉ का एग्जैक्टली जस्ट लाइक लॉ, इट इज ऑपरेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक कस्टमरी राइट। तो ऐसा कस्टमरी राइट भी अगर आपके फंडामेंटल राइट को अगर वायलेटिंग करता हो, तब भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, आर्टिकल 13 कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वाइड एब इनिशियो है। ओके, तो ये 13 की वजह से ही ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं आर्टिकल 14 के आगे, ये सारे के सारे अधिकार, ये किसी को अधिकार नहीं, इवन हमारे देश के पार्लियामेंट को यानी कि संसद को अधिकार नहीं बनता है कि वो इन अधिकारों को हमसे वापस ले, छीन के ले। मान लो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पावरफुल गवर्नमेंट आती है, मेजॉरिटी के साथ में आती है, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ में आती है सत्ता में, तब भी
वह उस गवर्नमेंट के या उस पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि हमारे इन अधिकारों को अमेंड करके छीन के ले ले। तो इतना इतना महत्वपूर्ण ये बात आर्टिकल 13 की वजह से। यही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से हमारे देश में जो अलग अलग प्रथाएं चलती थी, जो जो इनह्यूमन प्रथाएं थी, जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, ये कई सारे बातें वायलेट होती थी। जैसा सती का प्रथा बहुत जमाने में चलता आता था, ऐसे कई सारे अलग अलग फॉर्म्स के बहुत इनह्यूमन इनहीनियस प्रथाएं चलती थी और वो कस्टमरी तौर पे चलती थी। तो ऐसी कोई भी कस्टमरी चीज हो, ऐसा कोई कुछ भी हो, तो उसे एक झटके में एकदम निरस्त किया गया है इस आर्टिकल के माध्यम से। और अभी इसके बाद में अभी थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट जिसके खिलाफ में हमारे फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल, एंड आर्टिकल 13 ऐसा डिक्लेयर करता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में कोई दूसरा कानून नहीं जा सकता है। अगर बनाएगा या बनाया गया होगा या पाया जाएगा तो उसे नल एंड डिक्लेयर किया जाएगा, उसे 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 गैर कानूनी माना जाएगा, उसे असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये हुआ बेसिक बात फंडामेंटल राइट्स का। तो अभी एक्चुअल फंडामेंटल राइट का बिगिन होता है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो आर्टिकल्स है हमारे थर्ड पार्ट में, वो डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी ये आमतौर पर अभी हम इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, इट इज अ ह्यूमन राइट। एंड अगर हम इंग्लैंड का एग्जांपल लेंगे तो इंग्लैंड में है कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसा हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंग्लैंड में ऐसी कोई लिखित स्वरूप की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो उनके देश में फिर ये राइट टू इक्वालिटी क्या होगा, इट इज जस्ट लाइक अ लीगल राइट। ओके, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे हमने दर्जा दिया है फंडामेंटल राइट का। इसे हमने इतना ऊपर जाके बिठाया है इस आर्टिकल को, ताकि ये कभी किसी से छीन के ना लिया जाए। तो ये आर्टिकल 40 ये क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो इसका मतलब क्या होता है, कानून के सामने किसी को दूजा भाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीबडी शैल बी इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबडी शैल बी हैविंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन इस आर्टिकल के इस आर्टिकल को हम सही तरीके से अगर जानना चाहेंगे तो इस बात को अलग अलग तरीके से कहेंगे। ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तभी सही मायने में जाकर के सही इक्वालिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, सही समानता, सही समता हम लागू कर पाएंगे। क्योंकि सभी को एक ही रूल लागू करना, सभी को एक ही नियम से बांधना, यही बात इनइक्वालिटी में हो जाती है। जैसा मान लो एग्जांपल के तौर पर, अभी आपको एक रेस लगाना है, रेस में दो लोग हैं, एक बेचारा एक पैर से लंगड़ा है और दूसरा अच्छा है। तो दोनों को अगर आप सेम नियम अगर लगाएंगे रेस करने के लिए तो वो इनइक्वालिटी होगी, वो जस्टिस नहीं होगा। इसलिए फिर क्या करना होगा, तो जो लंगड़ा व्यक्ति है एक पैर से, उसके लिए अगर आपको सही में कॉम्पिटिशन करना है तो दूसरा जो आदमी है वो भी लंगड़ा ही होना चाहिए, और वो लंगड़ों में अगर हम रेस लगाएंगे देन इट विल बी एब्सोल्युटली इक्वालिटी। बिकॉज जो एक पैर से जो लंगड़ा आदमी है, जो डिजेबल्ड है, दूसरा भी आदमी अगर डिजेबल्ड रहेगा तब दोनों में इक्वालिटी आएगी। तो अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जैसा एक डिजेबल्ड आदमी और एक नॉर्मल आदमी, ये दोनों अनइक्वल है, तो इनको अनइक्वली ट्रीटमेंट देना ही इक्वालिटी का सही मायने में अर्थ होता है। तो ये कंसेप्ट हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अभी दूसरा एक एग्जांपल समझने के तौर पे, अभी एक ऑफिस है, मान लो कलेक्टर का ऑफिस है। कलेक्टर के ऑफिस में वहां पर कलेक्टर भी काम करता है, क्लर्क भी काम करता है, प्यून भी काम करता है। तो कलेक्टर को जो अधिकार है वो अधिकार उस क्लर्क को नहीं है, वही क्लर्क जो अधिकार है वही अधिकार उस प्यून को नहीं है। तो कलेक्टर को जो पगार मिलता होगा वो पगार उस क्लर्क को नहीं है, तो जो क्लर्क को पगार मिलता है वो प्यून को नहीं है। अब ये तीनों क्या है, अनइक्वल्स है। ओके, तो अगर ये कहेंगे तीनों की तीनों को सेम पगार मिलना चाहिए, तीनों को सेम पावर मिलना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये दैट इटसेल्फ विल बी absurd, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिकली फिजिकल। तब फिर क्या होगा कि इनको यानी कि कलेक्टर ऑफिस में जितने क्लर्क है उनको सारों को समान अधिकार होंगे, उस ऑफिस में जो जितने प्यून है वो सारे के सब समान, उनका सब समान काम करने का समान पगार सब। सिमिलरली जो स्टेट में जो सब कलेक्टर है सबको समान अधिकार रहेंगे, सबको समान पगार सारे रहेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इजीली कि इक्वालिटी क्या होती है। कलेक्टर और प्यून का दोनों का लेके हम दोनों इक्वल है इस तरह से हम बात नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी विच इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट सेज
equality before law and equal protection of law. That means this article, you know, is indirectly, letting us to have some special provision to deal with the unequals. इसलिए अब इसको थोड़ा सा और खुलकर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 उसे ऐड किया, और उसको अगर हम पढ़ेंगे तो फिर आर्टिकल 14 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया आता है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? अब आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल है कि जो नॉट ओनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो इवन प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि इंडिविजुअल आदमी भी कुछ बातें नहीं कर सकता है। वो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 कहता है कि आप जो है किसी के धर्म को लेकर, किसी के जाति को लेकर, किसी के वंश को लेकर, यानी किसी का जन्म का स्थान को लेकर, ओके, या किसी का कलर लेकर, ये इन बातों को लेकर आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ऐसा स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ आइदर कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कलर एंड सेक्स एटसेट्रा। ओके, तो इन बातों को लेकर के आप किसी नागरिक के खिलाफ में, या किसी नागरिक, 2 नागरिक है या 4 नागरिक है, तो इनके दरमियान भेदभाव कर नहीं सकते इन चीजों को लेके, ये ग्राउंड को लेके। सिमिलरली आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 ऐसा कहता है कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो है इन बातों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर समाज में जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें होती है, यानी जैसा बाथिंग घाट हो, जहाँ पे नहाने का घाट, या फिर पब्लिक वेल हो, मतलब जिसे विहिर या बावड़ी कहेंगे, तो इस तरह के जो, या फिर रेस्टोरेंट हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, पब्लिक होटल्स हो, तो ये जो पब्लिक प्लेसेस जिससे हम कहते हैं, इन जगहों पर कोई प्राइवेट आदमी भी इन चीजों को लेकर के किसी के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 15 कहता है। इसका मतलब क्या है? यू हैव अ प्रोटेक्शन नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ऑफ दिस ग्राउंड्स। You cannot be discriminated against because you belong to particular caste, because you belong to particular religion, race, color, or because you are of some sex. Okay, तो ये आर्टिकल 15 का कहना है। इसके साथ में आर्टिकल 15 थोड़ा सा और आगे जाके क्या करता है कि समाज में हमारे कोई ऐसा क्लास है जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर कंसेप्ट आता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट मतलब हमने स्टेट का डेफिनेशन क्या देखा था? सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्हें अगर लगता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है, जिसे हम SC/BC क्लास कहेंगे, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कुछ बनाने हो, तो वो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। और इस आर्टिकल 14 में, 16 में या 15 में जो कहा है, उसका उनमें हडल नहीं बनेगा। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल affirmative action to uplift people who are falling into the class of socially and educationally backward class. तो ये प्रोटेक्शन है। सिमिलरली आर्टिकल 15 और आगे जाके कहता है, सिमिलरली इसी तरह से जो महिला क्लास है और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें भी अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें भी मतलब एम्पावर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे इंडिया में देयर आर सो मेनी लॉज which are enacted to protect the women, which are enacted to protect the children. Okay, there are so many labor laws. You will find the Child Labor Prohibition Act, etc. जैसा सिमिलरली वुमेन के लिए बहुत सारे लॉज है। IPC में हमने ऐड किया है, 498 ये ऐड किया है। अभी स्पेशली आफ्टर द निर्भया केस इन दिल्ली, the entire criminal law was amended and so many new sections were added into our IPC, CRPC and Indian Evidence Act. Okay, these are specially enacted laws. And women के लिए you can see there is a maternity benefit relief act. Okay, and there are now the sexual harassment at workplace prohibition act 2008 में 7 में आया है। तो ये स्पेशली ये महिलाओं के लिए बना है। ऐसा महिलाओं के स्पेशल बनाने के लिए जितने कानून बने हैं, तो उनका सोर्स कहाँ पर है? ये आर्टिकल 15 में आता है। सिमिलरली बच्चों के लिए जो कानून है वो यहाँ का सोर्स है। सिमिलरली अभी सोशल अफर्मेटिव एक्शन with regard to uplifting the socially and educationally backward जो क्लास है, यानी कि हमारे जो आसान शब्दों में कहूँ तो जो बैकवर्ड से, ओके,
उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, मान लो आप देखते होंगे एग्जाम में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, या फिर आपको रिजर्वेशन मतलब आपको इवन इवन एडमिशन लेते समय जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग का फील्ड बोलिए या फिर डॉक्टर का आज कोटा है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। तो ये जो स्पेशली प्रोविजन बनाए गए अपलिफ्ट करने के लिए, ये आर्टिकल 15 का जो मैंडेट है उसकी वजह से आते हैं। तो ये हुआ आर्टिकल 15 का बात। अभी आर्टिकल 16 क्या होता है? अभी हमने यहाँ भी देखा है कि स्पेशल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू एडमिशन इनटू एजुकेशनल एंड इन एग्जामिनेशन, लाइक यू आर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन, like whatever exam, either exam is conducted either for passing any educational exam, educational degree etc, or even to get a government job। तो अभी गवर्नमेंट जॉब का जो बात है वो आर्टिकल 16 में आता है। तो वी विल फर्स्ट एंड विथ एजुकेशनल पार्ट ओनली। तो एजुकेशन में आपको जो भी सहूलियत मिलती है, जो कंसेक्शन मिलता है, जो रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ फीस मिलता है, एज मिलता है, पासिंग क्राइटेरिया में जो मिनिमम कंसेशन मिलता है, तो ये सारे क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 दैट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ओके, तो ये होगा आर्टिकल 15 का। तो 16 में क्या आता है कि 16 इज गिविंग अस अ गारंटी दैट एवरीबॉडी ऑफ अस इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पीट फॉर द पब्लिक पोस्ट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले क्या था हमारे समाज में, ऐसा क्यों हमको कहना पड़ा कि सबको अधिकार है पब्लिक पोस्ट के लिए कॉम्पीट करने का, स्पर्धा करने का? आज इसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट का या कोई भी सरकारी पद जो होता है, इवन प्यून का क्यों ना हो, उसे इस तरह से भरा जाता है कि ताकि सब लोगों को एक मौका मिले उस पद के लिए कॉम्पीट करने का। तो उसके लिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज है और इन्हें हमें फुलफिल करना है, इनका पद भरना है। तो जिन्हें भी इच्छा हो इस सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं और सभी को मौका मिलता है, अकॉर्डिंगली देन फर्दर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16। ये आपको मौका देता है कि जो सरकारी पद है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आपको स्पर्धा करने का, कंपटीशन करने का, फेयर कंपटीशन करने का एक मौका आपको मिल रहा है। हमारे कॉम्पिटिशन आने के पहले आपको ये मौका था क्या? एब्सोल्युटली नो। आपको फिर कैसा था? हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था चलती आ रही थी हजारों सालों से, उस जाति व्यवस्था में इस तरह की बातें थी कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ, उस जाति में जो काम चलता आ रहा है सदियों से, वही उसे काम करना पड़ेगा। तो ये इसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमी, हमारे देश का जो प्रोडक्टिविटी है, ये बहुत मतलब एक निगेटिव काइंड ऑफ रिग्रेशन जिसे हम कहेंगे, ये हुआ करता था। लेकिन अगर देश को अगर आगे लेकर जाना है, तो देश में जो टैलेंट है, देश में जो सभी क्लास से, सभी अलग अलग ग्रुप से, सभी अलग अलग जगह से जो टैलेंट अवेलेबल है, वो बेस्ट टैलेंट शुड बी अवेलेबल दैट कैन बी यूज इन द नेशन बिल्डिंग। एंड दैट इज हाउ this article is intending that every citizen who is having capacity, who is having the metal, who is having the caliber should get an opportunity to compete for the public post, public employment। इसीलिए हमारे अलग अलग स्तर पर सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, जैसा एमपीएससी है महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्य में अलग अलग इस तरह के बोर्ड होते हैं। सेंट्रल पे यूपीएससी है, बाद में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर किसी को डायरेक्ट तरीके से परमानेंटली जॉब लिया गया हो। तो इसके बारे में आपको एक 2005 में या 6 में एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक बड़ा जजमेंट आया था। इस आर्टिकल को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले क्या होता था कि कई डिपार्टमेंट में मान लो एक पोस्ट है, प्यून का पोस्ट हो या फिर स्वीपर का पोस्ट हो या फिर क्लर्क का पोस्ट हो, तो किसी वजह से उसको रेगुलर उसका भर्ती प्रक्रिया ना करते हुए किसी को टेम्पोररी जॉब पे लगा दिया। मान लो आपको एक उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसने कह दिया कि आप जो है डेली वेजेस के ऊपर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर आप 3 महीने के लिए बोलिए या फिर 1 साल के लिए बोलिए, किसी को ऐसा ही टेम्पोररी जॉब दे दिया। एंड देन दैट इज कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। मान लो 5 साल 10 साल ऐसा हो गया। उसके बाद में वो लोग 10 साल अगर जॉब करेंगे या लॉन्ग टाइम जॉब करेंगे, तो वो आदमी जो कहता था कि भाई अभी मुझे तो दूसरी जगह पे जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम ओवर एज, ओके, तो मुझे अभी दूसरा कुछ काम भी नहीं आता है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही परमानेंटली इस पद पे रख लीजिए। तो ऐसे लोग क्या करते थे, फिर कोर्ट में जाकर के कि मैंने इस जगह पर पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से, पिछले इन सालों से लगातार काम किया है और उस पद का जरूरत वहां पर है, वो पद परमानेंट है। ऐसा नहीं कि आज झाड़ू मारा तो कल झाड़ू मारने का जरूरत नहीं होगा ऑफिस में। स्वीपर का जो हमेशा
क्लीन रखने के लिए, या फिर क्लर्क का जो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो ये जो पद है ये वहाँ पे जरूरी पद है और वो रेगुलर भर नहीं पा रहे, और मैं इस पद पे लगातार काम कर रहा हूँ सालों से, तो आप मुझे इस पद पे परमानेंटली दे दीजिए। तो फिर कोर्ट से उसको ऑर्डर मिलता था कि इसको वही पद पे रेगुलराइज किया जाए। तो मान लो कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन से वो रेगुलरली उस पद पे अपॉइंट किया हो। तो इस ऐसा जब होता तो क्या होता था, इस अकेले बंदे को तो वो जॉब मिल गया, लेकिन उस जॉब के लिए जो हम अदर सिटीजन्स है जिनके पास में वो जॉब को जो लगने वाला जो क्वालिफिकेशन है वो होने के बावजूद भी उस पद को कॉम्पीट करने का मौका उनके हाथ से चला गया। ओके, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा है कि इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का पद होगा, क्लास 3 और क्लास 4, क्लास सी एंड डी का, उसे उसे रेगुलर बेसिस पे ही भरा जाएगा और उसे उसे बैकडोर एंट्री से नहीं दिया जाएगा। जैसा अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है, किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी सिलेक्शन, ऐसा ही हाथमा अपॉइंटमेंट लेटर थमा देता है एंड देन इट गोज ऑन कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसको उसको बैकडोर एंट्री कहते हैं। तो ये बैकडोर एंट्री अगर होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू वायलेशन ऑफ, के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एकदम मनाही कर दिया है। इसका केस का अगर आपको ज्यादा अगर पढ़ना है तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी करके जजमेंट है। ये आपको गूगल में आप अगर टाइप भी करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में इंडियन कानून नाम की वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल केस है ये आर्टिकल 16 को अच्छी तरह से समझने के लिए। आर्टिकल 17 में जब आते हैं हम, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि हमारे देश में सदियों से एक घृणास्पद, एक हीनियस काइंड ऑफ बात चलती थी जिसे अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी कहा जाता था। इंसान को ही हम टच नहीं करते थे, इंसान को ही हम हमारे ही जो इंडियंस है उन्हें हम टच नहीं करते थे, उसे हम अनटचेबल करके कहा करते थे। तो दिस वाज द इंटेग्रल साइन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इस आर्टिकल 17 के माध्यम से बंद कर दिया है। अभी एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म प्रैक्टिस बाय एनीबॉडी एनीवेयर शैल बी एन ऑफेंस बाय लॉ। तो इसको इस अस्पृश्यता को, इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के निर्माता है उन्होंने आर्टिकल 17 को इतना मतलब फंडामेंटल राइट के तौर में रखा गया। अभी इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे क्यों रखा, ताकि इसको आने वाले जमाने में समय में कोई बदल ना सके, स्टेट कोई बदल ना सके, यानी कि पार्लियामेंट भी इस प्रोटेक्शन को बदल ना सके, ताकि फिर से इस तरह की जो बुरी प्रथाएं है वो फिर से लौट कर ना सके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये इसे आपको कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 18 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन एनी सिटीजन एक्सेप्ट एकेडमिक। जैसा मान लो आपने पीएचडी किया हो या वकालत का डिग्री लिया हो तो आप एडवोकेट लगाएंगे, या किसी ने अगर मेडिकल का डिग्री लिया हो तो वो अपने नाम के सामने डॉक्टर नाम का डिग्री लगाता है। तो इस तरह की एग्जाम्पल छोड़ करके जो पुराने जमाने में जो टाइटल मिला करते थे, जो आजकल बहुत लोग जो है जो अपने सरनेम के तौर पर यूज करते हैं, ये एक जमाने में टाइटल हुआ करते थे। सर, एक नाइटहुड का अगर किसी को टाइटल मिला अंग्रेज के जमाने में तो उसे सर उसके नाम के सामने टाइटल के तौर पे लगता था। ओके, तो हमारे इंडिया में ऐसा बहुत सारे, देशमुख एक पर्टिकुलर टाइटल है, तो कुलकर्णी एक पर्टिकुलर टाइटल है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि these were the actually titles, though this kind of names are today used as surnames। तो इन्हें प्रोहिबिट करने का काम आर्टिकल 18 में किया है। नॉट ओनली दैट इंडियन स्टेट विल नॉट गिव, बट इवन अवर सिटीजन विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट आल्सो। तो ये टाइटल को पूरी तरह से खारिज किया गया है। इसका मकसद क्या है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी इन ट्रू सेंस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पार्ट ऑफ इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 these all articles are dealing with the right to equality। अभी राइट टू इक्वालिटी की मैंने ये तो बात बता दी। अभी एक्चुअल में इसे डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे अलग अलग नजरिए से इंटरप्रेट किया गया है। तो आर्टिकल 14 में क्या आता है, तो आर्टिकल अभी मान लीजिए आपका किसी ऑफिसर से एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम हो, एंड ही इज बिहेविंग आर्बिट्ररीली, ही इज पासिंग एनी ऑर्डर आर्बिट्ररीली विदाउट हियरिंग यू, विदाउट कंसिडरिंग द रिलेवेंट लॉ। तो इस तरह का कोई आर्बिटरीनेस अगर आता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, या कोई आर्बिटरी कानून बनता है, तो वो आर्बिटरीनेस जो है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। बिकॉज
आर्बिटरीनेस जहाँ पे होता है वहाँ पे समानता नहीं होती है। आर्बिटरीनेस जहाँ पे आता है वहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल नहीं होता है। आप किसी एक के फेवर में काम करना है आपको, तो उसको आप अपने दिल से, आपकी मर्जी से, आपके लहर से, विम्स एंड कप्राइस से आप काम करेंगे उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए, लेकिन वही आप दूसरे को नहीं कर रहे हो। सो वेयर arbitrariness comes, the article 14 is violated. So equality में क्या आता है कि नॉन arbitrariness का होना जरूरी है। तो जब लॉ बनता है या कोई एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, या कोई भी in whatever form that you as a citizen are dealing with the government or any instrumentality of the government, the non arbitrariness is required to be in the action of the government, otherwise it is violation of article 14. Similarly, concept of reasonableness, concept of fairness, the state action must be fair action, whether it is legislative action, whether it is executive action, whether it is administrative action, it should be fair, reasonable. नहीं है then it violates article 14. अभी आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस भी आता है, यानी कि नैसर्गिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, नैसर्गिक मूल्य, नैसर्गिक न्याय जिसे हम कहते हैं। अब नैसर्गिक न्याय मतलब क्या होता है कि किसी आदमी के खिलाफ में कुछ एक्शन लेना हो या उसे सजा देनी हो, वो चाहे डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करना हो, तो निसर्ग का न्याय क्या कहता है कि आप उसका जो साइड है उसे सुने बगैर आप उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते हो। दैट मीन्स द पर्सन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस प्रिंसिपल को एंड जो आदमी इस कुछ डिसाइड करता है वो जिसमें उसका खुद का फायदा हो, जिसमें उसका खुद का भला हो, वैसे मामले में खुद उसको डिसाइड करने का अथॉरिटी नहीं होता है, नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है दो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये दो प्रिंसिपल का भी अगर वायलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन माना जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, आर्टिकल 14 में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आ गया, कंसेप्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस, concept of non-arbitrariness, reasonableness, fairness, and ensuring that principles of natural justice are followed. These are all now included into Article 14 because of the judicial interpretations and activism that is done by the judiciary. Okay. Abhi let us go to Article 19. Now, Article 19 is very vital article because it gives us the democratic rights. It gives us various freedoms which make us to live our life with human dignity, because article 19 it gives us right of free speech and expression, and in a democratic setup right of free speech and expression is very, very vital. If the nation is to progress, if the society is to progress, then there has to be free speech in the society. People should not be afraid of saying. So this requirement, this right is guaranteed to us by Article 19, sub-article 19A, 1A. Similarly, Article 19 also gives us right to assemble peacefully and without being armed. यानी कि हम शांतिपूर्ण मार्ग से हम इकट्ठा हो सकते हैं, हम एसोसिएट हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। हम इसी तरीके से राइट टू एसोसिएट एंड टू फॉर्म यूनियंस एंड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी अदर संगठन, तो शांतिपूर्ण तरीके से आपको एसोसिएशन यानी कि फॉर्म करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से मिलता है आपको। जैसा पहले मैंने कहा कि राइट अभी हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में किसान जो है बेचारे वो आंदोलन कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण मार्ग से इकट्ठा होना, असेंबल होना और आंदोलन करना, ये और आंदोलन मतलब क्या है, दे आर protesting against what they feel that it is against them. They are protesting against the law made by the parliament because they feel that it is violating of their fundamental rights. It will damage their very livelihood. So they are giving their expression to their feeling. So this is the democratic right, and this is very much essential if the society is to progress. So these are the rights, freedom given to us by the Constitution. Similarly, right to move
freely anywhere, any part of India. So this right has been interpreted that this includes even right to go to abroad. तो ये आप जब जिधर चाहे उधर आप जा सकते हो, घूम सकते हो अपनी मर्जी से, ये आपका अधिकार है, आपका फ्रीडम है. सिमिलरली आपको बाहर कंट्री में जाना है तो वो भी आपका राइट टू मूव फ्रीली इस अधिकार में आता है. So similarly, right to carry out any trade, any business, any profession of your choice. तो ये आपका फ्रीडम है. तो जैसा मैंने कहा आर्टिकल 16 के समय कि जिस जाति में पैदा हुए या जिस घर में पैदा हुए, उस घर का जो व्यवसाय है, जो काम है, वही आपको करना होगा. ये हमारे एक जमाने में करता था. लेकिन अभी आर्टिकल 19 तुम्हें फ्रीडम देता है, आर्टिकल 16 तुम्हें गारंटी देता है कि आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और आर्टिकल 19 आपको हक देता है कि आप जो चाहे, आप में जो करने का जज्बा हो, जो करने का टैलेंट हो, whatever you want to do, any trade, any business, anything, you can do it. तो ये सब अधिकार हमें मिलते हैं आर्टिकल 19 की तरफ से. ऑफ कोर्स इन अधिकारों को रेगुलेट करने के लिए these are not absolute rights. तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन मेंटेन करने के लिए जो स्टेट है उससे रेगुलेट कर सकता है. अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को डॉक्टर बनना है, तो पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर हर किसी को फ्रीली में अगर छोड़ दिया जाए कि डॉक्टर बनेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर देयर हैज टू बी अ रेगुलेशन कि डॉक्टर कौन बन सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होगा, एक कोर्स करना पड़ेगा. तो ऐसा these are the restrictions which are created to maintain to regulate this fundamental right. ओके, ये सभी मतलब आपको जो भी ये जो फ्रीडम्स है, इन फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए सब्जेक्ट टू दी नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ etc. These rights are they are called golden freedoms actually. In fact, initially there was a right to property also as a freedom, as a fundamental right. But by way of 44th Amendment, I think in the year 1997 or 79 something, that was taken away, and that is now made merely a constitutional right. And this fundamental right to property was taken from Article 19. Now it is added as a constitutional right by way of Article 300A, capital A of Constitution. Still, it is a constitutional right. Courts have interpreted that this is now human right. Okay, human right is not fundamental right. All fundamental rights are human rights, but not all the human rights are fundamental rights, because human rights are guaranteed by the Constitution. Written Constitution is guaranteeing. It is saying that these are the fundamental rights. Okay, so this is the chapter, third chapter. वहां पर जो अधिकार आता है दैट इज अ फंडामेंटल राइट, और इसके खिलाफ में दूसरा कोई कानून नहीं बन सकता है. और जो अभी जो आर्टिकल 300A जो है वो फंडामेंटल राइट के श्रेणी में नहीं आता है, वो ह्यूमन राइट की श्रेणी में आता है, स्टैट्यूटरी राइट की श्रेणी में आता है. तो इस तरह का ये फंडामेंटल राइट का दर्जा होता है. ओके, तो आगे चलते हुए आर्टिकल 20, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बिकॉज इट डील्स विद द एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आवर इंडिया. अभी आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि you cannot be punished for an act unless that act is punishable as an offense by law. मतलब ये कानून है और कानून में ये कहा गया है कि ये पर्टिकुलर काम करना इसे ऑफेंस समझा जाएगा जब तक इस तरह का कानून से डिफाइन किया हुआ ऑफेंस अगर वायलेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी अथॉरिटी पनिशमेंट नहीं दे सकती है. Nobody can be convicted of any offense unless it is offense by law. मतलब कानून पहले बनाना चाहिए और कानून में डिफाइन करना चाहिए कि पर्टिकुलर ये काम करना यानी कि ऐसी चीज करना ही गुनाह माना जाएगा. तो किसी के दिल में आया, आपको पनिशमेंट दिया, ये अभी पॉसिबल नहीं है. ये किसी के हाथ में नहीं है. और दूसरा क्या होता है, जब लॉ बनता है, जब कानून बनता है, तो कानून में पहले ये कहा जाता है कि ऐसा पर्टिकुलर काम करना उसे गुनाह माना जाएगा. उसके साथ में उसमें उस गुनाह को कितना सजा होगा. मान लो ये फाइन होगा तो कितना होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट होगा तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा. तो जितना कानून कहता है उससे ज्यादा पनिशमेंट देने का अथॉरिटी किसको नहीं रहेगा. ये आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्ट करता है. तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, दैट नोबडी शैल बी कन्विक्टेड अनलेस ही कमिट्स एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ, व्हिच इज डिफाइंड बाय लॉ. ओके, एंड नोबडी कैन बी गिवन मोर पेनल्टी देन प्रोवाइडेड बाय द लॉ. ऐसा आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है टू ऑल सिटीजन्स. सिमिलरली
यू कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम थिंग। इसको डबल जियोपार्डी कहा जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि एक आपने गुनाह किया और एक उसका आपका प्रोसिक्यूशन हुआ, उसका रिजल्ट चाहे अक्विटल हो या उसका रिजल्ट चाहे कन्विक्शन हो, उसी गुने के लिए आपको बार बार सताया नहीं जाएगा, बार बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ गारंटी ऑफ आर्टिकल 20। ओके, सिमिलरली आर्टिकल 20 में एक और प्रोटेक्शन है कि यू कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ। मतलब आपने गुनाह किया तो आपको कोर्ट या पुलिस ऐसा कोई किसी तरह का फोर्स यूज करके आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आपने गुनाह किया है, आपने मान लो, आप कबूल कर लो। मतलब आपको ही आपके खिलाफ में विटनेस खड़ा करने का अनुमति किसी को नहीं है, कोई कोर्ट को नहीं है, कोई पुलिस को नहीं है। ओके, तो ये प्रोटेक्शन हमें अवेलेबल होता है आर्टिकल 20 से। तो ये इतना मतलब बढ़िया आर्टिकल है, आर्टिकल 20। दिस गवर्न्स द एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इवन इन टर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ऑल्सो, बिकॉज डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में मिसकंडक्ट होता है तो उसे पेनल्टी दी जाती है। समटाइम्स पेनल्टी इज डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, you lose the job, sometimes it is removal from the job, sometimes it is demotion। तो वहां पर भी इस तरह का सेटअप होता है। मिसकंडक्ट डिफाइन किया जाता है कि कमिटिंग सो एंड सो एक्ट will amount to misconduct, then that very law will provide what is the penalty, what is the punishment for that misconduct। So if the misconduct is so grave, so gross that it should result into dismissal, and that the misconduct is so small that it will call only a minor penalty। लेकिन कानून बोलता है कि इसे माइनर पेनल्टी देनी चाहिए, तो आपको माइनर पेनल्टी यानी कि स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट हो या सिर्फ वार्निंग हो या फिर इम्पोजिशन ऑफ फाइन ऑफ सम अमाउंट हो, इसको करने के बजाय आपको डायरेक्ट बोल दिया कि आप कल से डिसमिस्ड हो। तो इस तरह का जो पेनल्टी है, दिस अमाउंट्स टू वायलेटिंग आर्टिकल 20। तो इस तरह का ये आर्टिकल जो है अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जहां जहां पर पेनल्टी होती है उस सभी जगह पे अभी इसका एप्लीकेशन होता हुआ नजर आता है, आर्टिकल 20। उसके साथ में आर्टिकल 20 ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा जाता है, बिकॉज इट पर्टेन्स टू द लाइफ। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। और वो एग्जैक्टली आप अगर आर्टिकल निकाल के देखेंगे तो आपको शब्द क्या मिलेंगे, उसमें शब्द इस तरह के मिलेंगे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड। ये नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड मतलब निगेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसका इतना पॉजिटिव असर होता है, इसको इतना पॉजिटिवली कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। आज इसमें कई सारे अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू फ्री राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एयर इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्री मेडिकल एड इन इमरजेंसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन अप टू 14 years इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लीगल एड if you cannot engage a lawyer because of your poverty and you are facing a serious offense against you, you are being prosecuted, then you are entitled to be defended by the state government by spending money from the public exchequer। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट हो गया है। ओके, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। आपको समझो किसी मामले में आरोपी के तौर पर अगर ये किया गया है, अक्यूज किया गया है, तो पुलिस का क्या फर्ज है, पुलिस को फेयरली इन्वेस्टिगेट करना है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करना है कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए। अब ये सच्चाई आपके फेवर में आती है, अक्यूज के फेवर में आती है, तभी उसको सामने लाना है। या सच्चाई उस विक्टिम जिसके खिलाफ में गुनाह हुआ हो उसके फेवर में आती है, तो वो भी उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट करना है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना इस किसी भी मामले का ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में ऐसा कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, यानी कि राइट टू लाइफ में इतना सब बातें बाद में ऐड होता गया। बाद में फिर राइट टू फेयर ट्रायल। सिमिलरली अगर इन्वेस्टिगेशन ही अगर फेयर नहीं तो फेयर ट्रायल कहां से होगा, यानी कि अक्यूज को अपना पूरा बचाव का मौका मिलना चाहिए। सिमिलरली विक्टिम को उसको अपने आप को न्याय प्राप्त करने के लिए पूरा इफेक्टिव उसको मदद मिलना चाहिए। तो ये फेयर ट्रायल का बात हो गया। तो फेयर ट्रायल के साथ में स्पीडी ट्रायल भी उसका फंडामेंटल राइट है। स्पीडी ट्रायल यानी कि जल्द से जल्द न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि आज आपको आरोपित किया गया हो और 10 साल 15 साल आप आरोपी के तौर पर समाज में जी रहे हो, आपको जेल में रखा गया है सालों साल, और आपको आप दोषी हो या निर्दोष हो ये डिसाइड करने के लिए ट्रायल ही नहीं हो रहा हो, तो दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो ये आर्टिकल 21 में सब बातें धीरे धीरे कोर्ट ने ऐड की है। राइट टू एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज एनवायरमेंट है तो हम सब जिंदे हैं। एनवायरमेंट अगर पोल्यूट हो जाएगा तो इट विल इम्पैक्ट आवर लाइफ। So therefore, in order to protect and enjoy our life, the environment is essential. तो उसको बचाने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको जीने के लिए हमें एनवायरमेंट
ये राइट टू लाइफ it is so judicially and widely interpreted by the courts that now it is उसके नीचे कई सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 21 का। अभी इसका इतना मतलब इतना ज्यादा इंटरप्रिट होने का तो आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू लाइफ का जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं है कि एनिमल के इट डजंट मीन दैट इट इज एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब प्राणी के वैसा लाइफ, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ मतलब क्या होता है, राइट टू लाइफ टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, विद इंडिविजुअल डिग्निटी, सम्मान के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में जीने का अधिकार वो आर्टिकल 21 में है आपको। तो आत्मसम्मान के साथ में एक इंसान के तौर पर इंसानियत से जीने के लिए जो जो आपको लगता है वो सारी बातें आर्टिकल 21 में आ जाती है। तो सम्मान के साथ में जीने के लिए सारी जितनी बातें जरूरी है, आज जितनी जरूरत लगती है या कल जितनी अभी आने वाले दौर में, अभी रिसेंटली जब क्लैम डाउन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे इंटरनेट निकाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नाउ डेज इंटरनेट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट इंटरनेट यू कैनॉट एंजॉय द लाइफ। So now the connectivity of internet is also becoming a part of right to life, because without internet you cannot express yourself, without internet you cannot enjoy the life. तो ऐसा with the passage of time, आने वाले जमाने में ऐसा कहा जाता है आर्टिकल के 21 के बारे में। इसके जो शब्द है they are pregnant, मतलब समय के अनुसार जैसा जैसा हमको उसका मीनिंग चाहिए उस तरह का मीनिंग हम आर्टिकल 21 से लाइफ से लेते जाएंगे और उसको इंटरप्रेट करते जाएंगे, वाइड करते जाएंगे। So the article 21 is consisting of the pregnant words which will deliver the meaning according to need of time। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो ऐसा कहा जाता है। तो जैसा अभी इंटरनेट का मैंने एग्जांपल दिया है, तो एनिमल जैसा रहता है, एनिमल कैसा रहता है, उसको कपड़े का गरज नहीं है, उसको निवारे का भी गरज नहीं है, उसको अनाज मिल गया, खाने को जो मिल गया, और जहाँ उसे लगा वहां पे वो बैठ जाता है, सो जाता है। बट ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या होता है, यू नीड अन्न वस्त्र निवारा, उसके साथ में और एक क्या चीज जरूरी होता है, उसके साथ में बेसिकली इसे हम बेसिक्स कहते हैं ना, मतलब अन्न वस्त्र निवारा जब भी आता है तो रोटी कपड़ा और मकान। तो इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है जैसा अन्न वस्त्र निवारा है। बिकॉज इस लाइफ को अगर आपको एंजॉय करना है, इसको जीना है, और आपके जो अदर फंडामेंटल राइट्स है उसे एक्सरसाइज करना है, उसे एनफोर्स करवाना है कोर्ट से या सिस्टम से, तो उसके लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सो राइट टू लाइफ कैनॉट बी एंजॉयड इन द अब्सेंस ऑफ एजुकेशन। तो मतलब सिंपल भाषा में एक अनपढ़ आदमी अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पाएगा जितना एक एजुकेटेड आदमी जी सकता है अगर वो चाहेगा तो इसके लिए एजुकेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो राइट टू नो, फिर आपका गवर्नमेंट क्या कर रहा है और आपका गवर्नमेंट किस तरह से आपको एडमिनिस्टर कर रहा है, कंट्री को, समाज को किस तरह से चला रहा है, ये जानने का आपको अधिकार है। ये राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। तो ऐसे कई सारे जो राइट्स है, राइट टू बी कॉम्पेंसेटेड, अगर आपके मूलभूत अधिकार का वायलेशन होता है तब क्या, तब आपको उसका नुकसान भरपाई दिया जाएगा, आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और देना चाहिए। ऐसा आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू कॉम्पेंसेशन एक नया राइट टू लाइफ में रेड विथ आर्टिकल 32 इंटरप्रेट करके लाया है। अभी मैं यहाँ पर आपको एक केस एग्जांपल दूंगा, ये कब से चालू हुआ इस तरह का राइट टू कॉम्पेंसेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। 1983 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया कि एक जेल के कैदी ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को। उसमें ये कहा कि पिछले 14 सालों से मुझे इलीगल तरीके से जेल में रखा गया है। उसका नाम था रुडाल शाह और वो बिहार के जेल में किसी जेल में था, और उसने जेल से एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि मुझे 14 सालों से जेल में गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डिटेन करके रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में इंक्वायरी किया और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्हें आदेश दिए कि इंक्वायरी करके आप रिपोर्ट सामने पेश करें। तब जब इंक्वायरी हुआ तब सामने आया कि उसे वाकई में 14 साल से उसे इलीगल तरीके से जेल में रखा गया था। उसको 14 साल पहले ही कोर्ट ने किसी मामले में बाइज्जत बरी कर दिया था, उसके बावजूद भी जेल अथॉरिटीज ने उसे वहीं पे डिटेन किया था। तब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस तरह के मामलों को, अभी कितना वर्णन है लिबर्टी
14 साल का लिबर्टी आपका लाइफ में से सोचिए, यकीन कीजिए कि आपके लाइफ से कोई 14 साल निकाल के लेता हो, अब दुनिया की कोई अमाउंट उसे वापस नहीं कर सकती है। तो उस मामले में क्या करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एक नया फार्मूला इजाद किया कि बोला ऐसे मामले में हमें कॉम्पेंसेशन देना ये शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 या 32 में कॉम्पेंसेशन देने का बात किधर जिक्र नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा, रुडाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कि ऐसे मामले में हमें कॉम्पेंसेशन देना पब्लिक लॉ रेमेडी में, यानी कि फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत जरूरी है। तो उस केस से हमारे इंडिया में बाद में जब भी इस तरह की कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हुआ दिखाई देता है तो कोर्ट जो है आपको कॉम्पेंसेशन देने का आदेश देती है गवर्नमेंट को। मान लो आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट करके जेल में डाला गया, आपको अरेस्ट करके इलीगली उस इलीगल डिटेंशन कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर पुलिस इस तरह के एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। तो ऐसे मामलों में जिसका लिबर्टी का वायलेशन होता है उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन करके कॉम्पेंसेशन प्राप्त करने का, या इवन सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करके कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ रेड विद आर्टिकल 32 से हमें मिलता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस कोर्ट्स जिन्होंने इस अधिकार को इवॉल्व किया और उसे डे बाय डे उसे एनहांस किया, तो ये आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट के मामलों में, डिटेंशन के मामलों में और ज्यादा प्रोटेक्शन क्लियर कर देता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर किसी ने आपको अरेस्ट किया, पुलिस अथॉरिटी ने, तो 24 घंटे के भीतर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। ये किसके लिए है? बिकॉज मैजिस्ट्रेट एक पहला अथॉरिटी है जो आपके लिबर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए पिक्चर में आता है। तो राइट टू लिबर्टी जो है आपका पर्सनल लिबर्टी है, वो आपको जब अरेस्ट किया जाता है तो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। तो वो सही तरीके से हुआ है क्या? वो सही मैनर में हुआ है क्या? आपको जो अरेस्ट किया गया है वो क्या अरेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ वजह है क्या? क्या ऐसा ही किसी के दिल में आया, आपको उठा के लेके गया, झूठे मामले में फंसाया गया? तो ये सब चेक करने के लिए सबसे पहला मैजिस्ट्रेट का अथॉरिटी आता है। इसलिए within 24 hours of the arrest you have to be immediately produced before the magistrate। ये आपका आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन मिलता है। सिमिलरली आपको जब अरेस्ट किया जाता है तो आप जब कस्टडी में हो तो आपको आपका जो चॉइस का जो लॉयर है वो आपको मिल सकता है और उसे मिलने का आपको अधिकार है। तो ये अधिकार आपको, यानी कि आप जेल में हो, आपका लिबर्टी आपसे छीन कर लिया गया है, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है। तो ऐसे मामले में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन रहेगा? वो लॉयर ही रहेगा जो आपको लिबर्टी को वो बचा सकता है, उसे डिफेंड कर सकता है। तो इसीलिए राइट टू हैव अ चॉइस, लॉयर ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट एंड दैट टू व्हेन यू आर इन कस्टडी। तो इतना बड़ा अधिकार है आर्टिकल 22 से प्राप्त होता है। तो सिमिलरली अभी इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु का जो केस हुआ था 1997 में, उसने कई सारे गाइडलाइंस दिए हैं। उन गाइडलाइंस को अगर आपको जानना है तो आप इंटरनेट पे जाकर डीके बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ बंगाल अगर डालेंगे तो आपको पूरा केस 1997 का मिल जाएगा। तो फिर उन्हीं बातों को लागू करवाने के लिए फिर बाद में पार्लियामेंट में कानून में अपना सीआरपीसी में अमेंड करके उसे ऐड भी किया है। अगर शॉर्ट में अगर कहूँ तो पुलिस को अरेस्ट करते समय आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको किस ग्राउंड के ऊपर अरेस्ट कर रहे हो। ऐसा है कि आपको जिस मैनर में लिया जाता है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज वायलेटरी। आपको हैंडकफिंग नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हैंडकफ करना मतलब आपका ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि जैसा जानवर को पकड़ के ले जा रहे हैं इस तरह का होता है। तो हैंडकफिंग इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ नाउ, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो जो पुलिस वाले अरेस्ट करने को आते हैं तो उन्हें अपना वर्दी में रह करके बैच लगाना होता है। तो यू शुड नो दिस इज द पुलिसमैन, हिज नेम सो एंड सो। तो ये सारी बातें पुलिस डायरी में आपको रिकॉर्ड करना है कि हम उसको अरेस्ट किस लिए किए। वहां पे उसको अरेस्ट पंचनामा बनाना है, यानी कि वाकई में हम जिस जगह से उसे कह रहे हैं कि अरेस्ट लेके आए तो वहां पे जो आसपास के एरिया में जो लोग हैं उनका वहां पर सिग्नेचर लेना है इन द विटनेस ऑफ एविडेंस ऑफ योर अरेस्ट। तो ये कई सारी बातें हैं वो डीके बसु का केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो है दीज आर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें क्या होता है, समाज में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि हाँ,
समाज में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है यानी कि फ्लैश ट्रेड होता है तो उसे प्रोहिबिट किया गया है बाय लॉ। तो if selling of human being, selling of women and children for the purpose of flesh trade, sexual exploitation, तो ये constitutional protection है that these things are strictly prohibited by law and it shall be duty of the state to prevent all these things. Okay. Similarly, एक जमाने में फोर्स्ड लेबर हुआ करता था, यानी कि आपको एज इफ आप मतलब एक जानवर हो और एज इफ आपको जब चाहे वैसा ऑर्डर दिया जाएगा, आपको अमल में लाना होगा, आपको काम करना होगा, आपको कोई वर्किंग आवर नहीं है, आपको कोई इंटरवल नहीं है, आपको कोई मनचाहा आपका पगार नहीं है काम के हिसाब से, मालिक के दिल में जो आया उस तरह से आपको, तो उसे बॉन्डेड लेबर यानी कि फोर्स लेबर, तो इस तरह का जो सिस्टम था हमारे इसमें उसे इस आर्टिकल के माध्यम से फिनिश किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। और ये ऐसा नहीं होना, इसलिए स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, बाय लॉ स्टेट हैज टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग। तो हमारे स्टेट ने इसको अमल में लाने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं एंड नाउ फोर्स्ड लेबर is a crime in India and if anybody is indulging into that then it will be he will be subjected to criminal prosecution and punishment. Similarly, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उन्हें मतलब उम्र छोटी उम्र में in childhood when they are minor, when they are below age of 14, they should not be employed in factory or खान जहां से खनिज निकालते, माइन, या फिर हैजर्डस तरीके का काम जहां पर होता हो किसी तरह पे, तो इस तरह की चीजों में उन्हें एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। दिस इज द प्रोटेक्शन गारंटीड टू द चिल्ड्रेन। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 23 एंड 24 में। अभी आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है, दीज आर पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट विद रिगार्ड टू रिलीजन एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आर्टिकल एवरी पर्सन सब्जेक्ट टू मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ, एवरीबडी ऑफ अस शैल हैव right to have free conscience, and second right to have right to practice, profess and propagate religion of your choice। तो यहाँ पे दो अधिकार हमें आर्टिकल 25 से मिल रहे हैं। तो पहला अधिकार क्या है, राइट ऑफ फ्री कंसाइंस, और दूसरा अधिकार क्या है, राइट ऑफ रिलीजन। अब राइट ऑफ रिलीजन में क्या है, प्रैक्टिस करना, उसे प्रोफेस करना। प्रोफेस करने का मतलब क्या होता है कि तुम बगैर किसी डर के सबके सामने कह सकते हो कि यस आई डू बिलीव इन दिस पर्टिकुलर रिलीजन, और आपको ये कहते समय किसी का डर नहीं है, तो इसे कहते हैं प्रोफेस करना, पब्लिकली डिक्लेयर करना कि यस आई डू बिलोंग टू दिस रिलीजन, आई प्रैक्टिस दिस रिलीजन, इसे कहते हैं प्रोफेस कहना। प्रैक्टिस करना मतलब उसमें अमल में लाना। एक्चुअल में जैसा तुम जिस धर्म के हो, जिसे तुम चाहते हो कि इसे मैं फॉलो करूँ, उसको अपने अमल में लाना, उसमें कही गई बातों के हिसाब से अपना अनुसरण करना, उसे कहते हैं प्रैक्टिस करना। प्रोपोगेट करना मतलब क्या है, आप उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हो, आप उसका प्रचार भी कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल राइट है आपका रिलीजन का। तो अभी जो पहला अधिकार है वो क्या कहता है, राइट ऑफ फ्री कंसाइंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि राइट ऑफ रिलीजन के पहले आपको राइट ऑफ फ्री कंसाइंस दिया गया हो। मान लो, मुझे लगता है कि दुनिया के सारे धर्मों ने जो है इंसानियत का बुरा किया है, और इन धर्मों की वजह से इंसानियत में एक दुश्मनी या फ्रेटर्निटी का अभाव हो गया है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो ये धर्मों ने इंसानियत का बुरा किया है, इसका कोई भला होता नहीं, तो मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा, ऐसा मेरा कंसाइंस मुझे कहता है। तो क्या ये मुझे अधिकार है? तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन अपने को अधिकार देता है हमें राइट ऑफ फ्री कंसाइंस। अगर कंसाइंस कहता है कि आई डू नॉट वांट टू बिलोंग टू एनी रिलीजन, आई डू नॉट वांट टू वर्शिप एनी गॉड, आई डू नॉट वांट टू belong to profess, practice or propagate any religion, then absolutely it is my fundamental right। अभी रिसेंटली 2011 या 13 में बॉम्बे हाईकोर्ट में केस आया था, जहां पर इस आर्टिकल को अपना बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा तरह से इंटरप्रेट किया। एक किस्सा ऐसा था कि एक 1000 लोग या 2000 लोग इकट्ठे हुए थे, जो जिनका ऐसा मानना था कि दुनिया के सारे रिलीजन एकदम गलत है, वो इंसानियत में एनमिटी क्रिएट करते, एक दुश्मनी पैदा करते, और ये इंसानियत के लिए गलत है, इसके लिए हम कोई रिलीजन को नहीं मानने वाले हैं, और हम रिलीजन लेस है, हमको कोई धर्म का जरूरत नहीं है। तो इन्होंने गवर्नमेंट को एक निवेदन लिखा कि आपके जो गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं, कई व्हेन यू अप्लाई टू द गवर्नमेंट
तो वहाँ गवर्नमेंट का फॉर्म में आपको आपका धर्म क्या है, आपका जाति क्या है, इस तरह का फॉर्मेट आता है। तो इन्होंने कहा कि हम जब धर्म को मानते ही नहीं, हम धर्म में विश्वास रखते ही नहीं है, हम धर्म को वी आर रिलीजनलेस, तो आप हमें कंपेल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपका ये जो कॉलम है धर्म का, इसे आप निकाल दीजिए। तो गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, कि यू हैव टू हैव फेथ इन सम रिलीजन, मतलब आपको कोई ना कोई धर्म को मानना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। तो गवर्नमेंट ने इनका निवेदन को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया, गवर्नमेंट के ऑर्डर को। तो हाईकोर्ट ने उन्होंने कहा, वो दे रिलाइड अपॉन आर्टिकल 25, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है कि हम चाहे तो किसी धर्म को माने या ना माने, हमारा कंसाइंस है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका कहना एक्सेप्ट किया, माना, यस यू आर एंटाइटल्ड टू से दैट यू डू नॉट हैव फेथ इनटू एनी रिलीजन, यू मे नॉट बी कंपेल्ड टू से दैट यू बिलोंग टू एनी रिलीजन। तो इस और रिलीजन का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें नेसेसरीली गॉड हो, बिकॉज रिलीजन क्या होता है, रिलीजन इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिलीजन क्या होता है, रिलीजन में एक फेथ का होना जरूरी है, फेथ इज कॉन्स्टिट्यूटिंग रिलीजन। अभी फेथ जो है किसी भी तरह का हो सकता है, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फेथ इन द गॉड। तो जैसा हमारे इंडिया में रिलीजन है, जैसा जैन रिलीजन है, जैसा बौद्ध रिलीजन है, जिसमें अथेइस्टिक रिलीजन है, जहाँ पे गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट ने कहा था दैट रिलीजन मे नॉट बी अ थेइस्टिक रिलीजन, इट कैन बी अथेइस्टिक रिलीजन आल्सो। तो आपको ये अगर लगता है कि इस तरह के जो रिलीजन है उसमें हमें फेथ नहीं है, तो यू आर एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, बिकॉज आर्टिकल 25 इज गारंटिंग सच अ राइट। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत वंडरफुल जजमेंट है। जस्टिस ओक ने इस जो अभी फिलहाल में कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने फैसला सुनाया था। ये 2011 या 13 का बात होगा। उसके बाद में रिसेंटली अभी लास्ट ईयर में मद्रास हाई कोर्ट में एक किस्सा आया था, जो पेरियार रामास्वामी होकर गए थे। उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में जो काम किया, उनका एक आइडियोलॉजी था। उनका आइडियोलॉजी ये था कि भगवान यानी कि ईश्वर जो है, वो कहते थे कि जो लोग गॉड को मानते हैं या गॉड का प्रचार करते हैं, वो रास्कल होते हैं। और उनका ऐसा आइडियोलॉजी था कि ये गॉड मतलब इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस। और उस आइडियोलॉजी के ऊपर उन्होंने पूरा लाइफ टाइम काम किया। तो उनके मरने के बाद में उनके जो स्टैच्यूट है, उन स्टैच्यूट के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, देयर इज नो गॉड एंड वन हु believes in God is fool and one who propagates God is rascal, ऐसा इस तरह के कुछ शब्द थे। तो किसी ने पिटिशन फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में कि इन शब्दों को उनके स्टैच्यूट से हटाया जाए। फिर उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, बहुत मतलब लैंडमार्क जजमेंट कहना चाहिए उसे। उन्होंने कहा है कि गॉड नहीं है ऐसा कहना और उसका प्रचार करना, ये भी जो है आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में आता है। और पेरियार रामास्वामी ने खुद पूरा लाइफ टाइम इसके ऊपर काम किया। उनका कहना था, उनका मानना था कि गॉड जो है इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब लोगों को लूटने का, एक्सप्लॉइट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उनका आइडियोलॉजी है। तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो उस बात को मद्रास हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि यस, गॉड नहीं है ऐसा प्रचार करना या ऐसा मानना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये आर्टिकल 25 का जो राइट ऑफ फ्री कंसाइंस है, इसके ऊपर ये अभी रिसेंटली 2 केस हुए, पंजाब हाई कोर्ट में और अपना बॉम्बे औरंगाबाद हाई कोर्ट में लास्ट ईयर। बट I do not think that I should go into all those cases again. These 2 cases are sufficient to understand what is exactly meant by right of free conscience. So you cannot be compelled to believe in God. You cannot be compelled to follow, practice or propagate. You can be religionless. You can be atheist, and that is your fundamental right. Okay, ये आर्टिकल 25 का अधिकार आता है। सिमिलरली आर्टिकल 25 जिसको मानना है रिलीजन माने, रिलीजन में फिर वो थेइस्टिक रिलीजन माने या अथेइस्टिक रिलीजन माने, ये उसको फ्री चॉइस रहेगा। These are fundamental rights. This cannot be taken away. Even a law cannot be made by any law making authority like parliament and state legislature to take away such a right from citizens. So ये बहुत महत्वपूर्ण। आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार देती है कि वो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं। और उसे लगने के लिए प्रॉपर्टी का प्रोक्योर करना, प्रॉपर्टी को प्राप्त करना, उसे एडमिनिस्टर करना, ये सारे अधिकार जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी पंथ हम जिसे कहेंगे,
उन्हें दिया गया है। तो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन हैव religious instruction, religious education, can establish such kind of institutes, and they can acquire property in the name of institute, they can administer in the name of institute. तो ये आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में क्या आता है कि आप सिटीजन हो, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, लेकिन आपके टैक्स का पैसा जो है किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो क्या ये परमिसिबल है? तो आर्टिकल 27 कहता है कि यू आर हैविंग अ फ्रीडम वेदर टू गिव और नॉट टू गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट इफ द even a small part of that tax money is being used to promote particular religion. That means in simple way, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप टैक्स दे और उस टैक्स में का पैसा यूज करके कोई रिलीजन का प्रमोशन किया जाए। ओके, दैट मीन्स व्हेन आपका टैक्स का पैसा किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए अगर इस्तेमाल होता हो तो आप टैक्स देने का आपको कोई गरज नहीं, आपका अधिकार है। यू कैन डिनाई टू पे द टैक्स। दैट इज द फंडामेंटल राइट गिवन टू एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 27। तो सिमिलरली आर्टिकल 28 जो है, मान लो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जहां पर रिलीजियस टीचिंग दिया जाता हो, और मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा आदमी जो रिलीजन में बिलीव ना करता हो और वहां पर वो छात्रा के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर गया हो, तो क्या वो जरूरी है कि उसे उसमें उस इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस टीचिंग दिया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करो, या वर्शिप की जाती हो तो उसको अटेंड करे? क्या ऐसा बाय लॉ कर सकते हैं? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू अटेंड सच काइंड ऑफ वर्शिप और सच काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इफ it is given in any educational institution which is receiving aid from the state government. मतलब इसका सीधा मतलब ये है, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों को जबरदस्ती से कोई धर्म का टीचिंग या धर्म का पूजा अर्चना इस तरह का जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो दिस इज अ फंडामेंटल राइट। अब ये आर्टिकल 25 जो राइट ऑफ फ्री कंसाइंस है उसके साथ में जोड़कर आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आएगा व्हाई इट इज सो नेसेसरी। ओके, तो आर्टिकल 29 जो है वो आर्टिकल 29 है, ये आर्टिकल 26 जो है उसी तरह का आर्टिकल है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए है, वेयर आर्टिकल 29 है माइनॉरिटीज के लिए। तो माइनॉरिटीज किस तरह के? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या उनका खुद का लैंग्वेज हो, या खुद का कल्चर हो, या खुद का स्क्रिप्ट हो। तो इन आधारों के ऊपर जो लोग हैं, जो ग्रुप्स है वो बसे हो, और उन्हें उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका जो स्क्रिप्ट है, जो बोली है, उसको बचाने के लिए, जो लैंग्वेज है उसको बचाने के लिए उसको अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ और करना पड़ेगा तो उनको एब्सोल्युटली वैसा करने का अधिकार रहेगा। और इस बात को लेकर उसके साथ में गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेंगे कि आप पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक या कल्चर बेस्ड माइनॉरिटी हो, और आपका एजुकेशन आप फॉर्म करना चाहते हो इंस्टीट्यूशन, तो आपको हम एड नहीं देंगे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। सो द माइनॉरिटीज आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन institutes where they can maintain and promote their script, their language and their culture, and the state cannot create any discrimination against them. So these are the rights given to the minorities. Similarly, article 29 सब आर्टिकल 2 में ऐसा बात है जो हमने आर्टिकल 15 में देखा था। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? नो पर्सन shall be discriminated against on the ground of रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड कलर। यहाँ पे आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? नो पर्सन shall be subjected to any discrimination in the matter of admission into such educational institution on the ground of caste, race, sex and language। तो लगभग ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29(2) ये लगभग समान है। सिर्फ इतना ही फर्क याद रखिए, आर्टिकल 29 जो है इट परटेन्स ओनली टू एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये हुआ आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वही जो मैंने आपको अभी बताया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट एंड टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर वेदर लिंग्विस्टिक और अदरवाइज एंड स्क्रिप्ट और एटसेट्रा। ओके, सिमिलरली आर्टिकल, अब इसके बाद में आर्टिकल 31 बी, सी एंड ए, बी, सी है कैपिटल, ये अमेंडेड एंड इंसर्टेड है। अभी इसमें आपने सुना होगा 9th शेड्यूल
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 9th शेड्यूल है, तो कानून बना करके उस 9th शेड्यूल में अगर उसे रखा गया तो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज दैट इट इज वायलेटिव ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ थर्ड पार्ट। तो नॉर्मली ये जो कानून है, आप 9th शेड्यूल अगर निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के स्टैट्यूट मिलेंगे जो कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए हो, यानी कि जिसके पास में बहुत ज्यादा जमीन हो उसकी जमीन निकाल करके जो लैंडलेस है उसे जमीन देने के लिए जो इक्वालिटी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो इक्वालिटी और इक्वल सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देने का जो बात कहा गया है, हमारे इवन प्रियमल में जो बात कहा गया है, उसे अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसे 9th शेड्यूल में अगर रखा है तो यू कैन नॉट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दैट। लेकिन अभी इन जैसे कानूनों को भी आप चैलेंज कर सकते हो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ में जाने वाले कानून है, यानी कि उस तरह का कानून है कि वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिलाता हो कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टिल यू कैन चैलेंज सच लॉ। सिमिलरली आर्टिकल 31B जो कहता है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कानून बनता है तो वैसे कानून को आप ये कहकर चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो हमारे आर्टिकल 19 का या फिर आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता हो, तो उससे भी बचा। यानी कि ये क्या है, ये दीज आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ में नहीं जा सकता है। तो ये अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है आप निकाल के देखेंगे तो दे आर द प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्निंग ऑफ कंट्री, और ये सारे समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस एक्चुअल में एस्टेब्लिश करने के लिए है। ओके, तो इसके लिए आर्टिकल 19 और 14 के ऊपर कोई जाकर नहीं कर सकता कि ये देखो उन्होंने स्पेशल कानून बना दिया किसी के लिए और ये हमें ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है जो इनको है, तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है। तो सबसे लास्ट में अभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो आपको आपके अधिकारों को, आपके इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटिशन लगवाना, टू फाइल अ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड रिट पिटिशन, एंड टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में टू अप्रोच और टू मूव सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ गारंटीड राइट टू यू। ओके, अभी इस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने इतना वाइडर बना दिया है पिछले 4-5 सालों में कि राइट टू एक्सेस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब ये है कि not only that going to Supreme Court is a fundamental right under Article 32, okay, but approaching every legal authority like police, if you are victim, you are going to police and filing complaint, then you are having access to the justice at the stage of lodging FIR. So going to police and lodging a complaint itself is a fundamental right, because that is the first step to get the justice, and your access to justice itself is a fundamental right. तो कोर्ट में जाना, पुलिस में जाना, या जहां पर आपका लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है उनके सामने जाना, उन्हें अप्रोच करना, यानी एक्सेस टू है जुडिशियल मैकेनिज्म, जुडिशियल ऑफिस वेयर द रेमेडीज अवेलेबल, तो सब जो है वो हमारे एक्सेस टू जस्टिस में आता है। तो आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू फाइल अ रिट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सिमिलरली मैं आपको बता दूं there is a similar order article in our constitution that is called article 226, and that gives you a right to file similar petition before the honorable high court for enforcing not only your fundamental rights but even other legal rights also, human rights also, for example statutory rights also, even the rights which are created by the delegated legislation also. Okay, so this is the difference between, and as far as article 32 is concerned, it is only to enforce the fundamental rights. तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए। तो these are dear friends the fundamental rights which I think I have tried to cover in the time that was allotted to me, and with this I once again congratulate and grateful to the team of National Students Union Legal Life. Thank you, Nangre. If any question or if anybody wants to have any question, then I am welcoming to question also. Thank you. Okay, thank you.